Written communication. Am I audible? Hello. Good evening to all of you. Yes, sir. Good evening. Yes, sir. You're audible. Written communication. Written communication, from the name itself, you can identify it's a process of uh, in conveying your message and ideas through a written form. Okay, that is called written communication, and this one is very much important for your academics as well as professional settings. Okay, because in your professional field, um, you need to be maintain your well structured format of writings, whatever your writings, such as emails, memorandum, notice, synopsis, abstract, whatever you are writing for the organizations, that should be in a well format and well structured. So here, the written communication takes a major role in this, such as it include letters, okay, report writing, digital text writings, okay, email writing, okay, and one of the most important thing of this particular written communication, which comes under formal communication, that is you need to have the clarity and accuracy, which is very very essential for that while writing. So okay, this is called a written communication. Next, what are the importance of written communication? These all help to maintain official records. Okay, clear and organized presentations. Okay, essential in education, administration, and business correspondence. Professionalism and accountabilities. These all are the importance of written communication. And what are the examples? The letters, reports, email, memos, academic writing such as research paper, essays, notice, and circular. Okay, these are all the importance and examples of written communication. Next slide. Unit 3, presentation skill, the ability and effectively communicate the information to the audience in a very clear, confident, and the presentation must be engaging. One of the most important thing of presentation skill is that you need to engage the audience. That is why presentation skill requires some other extra spark to the communicator who is communicating or who is presenting. They need to have some extra spark in themselves. The gesture, the posture, the articulations, the clarity, the confidence level, these all are required for the presentation skill, because after all, your each and every words, whatever you are throwing towards the audience or towards the listeners, that will only the way to engage the audience. कल मैंने एग्जांपल्स दे रहा था, शायद नीलांजन एब्सेंट था, मैं तन्मय को दे रहा था, अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी अपना स्पीच प्रेजेंटेशंस देंगे और वो साइड बाय साइड शशि थरूर और या शाहरुख खान अपना प्रेजेंटेशंस देंगे, तो 90% ऑफ इंडियन populations will vote for Shahrukh Khan or Shashi Tharoor, else Atal Bihari Vajpayee. Why? Because though Atal Bihari Vajpayee is a great poet, he is a great scholar, he is a great writer, but the communications, the clarity, the modulations is not up to the mark as compared to this artist, Shahrukh Khan, or say, for example, Shashi Tharoor. Okay, why? Because these two charismatic people, Shashi Tharoor and Shahrukh Khan, they are such a brilliant, you can say, communicator that they can engage the audience. कहते हैं कि 1.5 घंटा या 2 घंटा का जो फिल्म होते हैं सिनेमा घर में, पहले 15 मिनट या आधा घंटा अगर सिनेमा निकल लेता है तो वो बॉक्स ऑफिस हिट हो जाता है. तो वो जो मसालेदार फिल्म होते हैं उसमें वो समा बांधने का एक जज्बा होता है. अगर आप मृणाल सेन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द न्यू डायरेक्टर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द old directors, old producers, the Mrinal Sen. Okay, one of the most renowned director, producer of all time, Mrinal Sen. Whenever Mrinal Sen used to write or used to direct any stories or any film, that film definitely going to hit the box office. Or Satyajit Ray. Why? What is there? What is in them? सत्यजीत रे कहा जाता है वो अगर राह चलते किसी एक
नॉर्मल इंसान जो एक्टर्स एक्टिंग से बिलोंग नहीं करता, अगर उनको लेके फिल्म बनाएंगे तो वो फिर भी फिल्म बॉक्स ऑफिस रहेगा। जैसे पथिर पांचाली, जानते हो सत्यजीत रे को इस फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला, नॉट ओनली नेशनल अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड्स जैसे विच इज कॉल्ड क्या उससे अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला था। क्या था उस पथिर पांचाली में? आप अगर उस फिल्म को देखिएगा, आई डोंट नो वेदर दिस यंग, though I am also from the young generations, but I love to read the literatures and all, that's why I can describe all these things. पथिर पांचाली जो फिल्म था, उसमें जो एक ओल्ड किरदार निभाया था, सबसे ओल्ड लेडी, एजेड, उनका तब उम्र था 80 years of an age। आप विकिपीडिया, पथिर पांचाली का विकिपीडिया सब पढ़ोगे तो वो जो लेडी रोल कर रही थी, एजेड लेडीज की, उनका एक्चुअल एज 80 था। और उनका जो डायलॉग्स डिलीवरी था, कोई डब नहीं हुआ था, तब वो डबिंग जमाना नहीं था, वो ओरिजिनल को एक्टिंग करवाया गया था उनसे। सत्यजीत रे ने उनको करवाया था एक्टिंग। कितना ब्रिलियंट, आप सोच सकते हो, गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड आर्टिस्ट है सत्यजीत रे। अपार्ट फ्रॉम दैट, वो जो छोटे छोटे बच्चे थे, इनका शूटिंग घाटशिला में हुआ था। पथिर पांचाली का मैक्सिमम शूटिंग घाटशिला या चक्रधरपुर डिविजन्स में हुआ था। वो जो पहाड़ी का सीन्स था, दैट वाज टेकन फ्रॉम चक्रधरपुर, आपका चाईबासा रीजन्स, उस रीजन में लिया गया था। तो आप उन फिल्म को देखिए, उन किरदार को देखिए, वो सिनिक व्यूज एंड ब्यूटीज को देखिए, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू मिसमराइज द ऑडियंसेस, एंड दैट इज व्हाई दिस फिल्म awarded as a बेस्ट ग्रैमी अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड। पहला ऑस्कर अवार्ड इंडिया को मिला था उस पथिर पांचाली, दैट टू अ बंगाली कल्ट फिल्म, जो बाद में जाके कल्ट बन गया। तो प्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि आप ऑडियंस बांध दे। उसमें ना कोई रिनाउंड चेहरा था, ना कोई रिनाउंड फेस था, ना कोई रिनाउंड आर्टिस्ट था, ना कोई म्यूजिक था, बट स्टिल द सिनेमा बिकेम अ कल्ट वर्ल्ड वाइड। और अब मतलब क्या, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशंस। उनका प्रेजेंटेशंस इतना अमेजिंग था कि ऑडियंस ने चाहते ना चाहते हुए भी उस फिल्म को आकर्षित हो गया। दिस इज द थिंग। ओके, तो प्रेजेंटेशन स्किल में क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है? अबाउट योर विजुअल्स, अबाउट योर स्पीकिंग्स, अबाउट योर इंटरपर्सनल एबिलिटीज। ओके, जैसे इंटरपर्सनल एबिलिटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल योर लिसनिंग स्किल, योर कम्युनिकेशन स्किल, योर way of presenting, the way of the clarities that you are having whenever you are trying to say something. This all comes under presentation skill. Basically, this presentation skill, we can find it out in our classroom, in our lectures, when our faculties or any teachers giving lectures on any topic to the students. Okay, seminar, webinars, conferences, this all comes under presentation skill. For example, now I am also giving some presentations in front of you. Okay, that too means of online, but still I am presenting before you. So what will be the most effective way that I need to present towards my students? The most effective way is about the skill, about the clarity, about the modulations. With these tools, I can engage any of my students. Okay, so these are the important part which is very important for your presentations. Next slide, ma'am. Next slide. Now, what are the important features, or you can say the key elements of presentation skill? पहला है the content preparations. Content preparations हमेशा organized way में जितना रहेगा, उतना ही उस presentations में clarity रहेगा, उतना ही cohesions रहेगा, उतना clear visuals रहेगा। अगर आपका presentations, आपका contents लॉजिकली वे में अगर वो मतलब सीरियल नहीं है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगा। देखिएगा, बहुत सारे ऐसे फिल्म है, फिल्म अच्छा है, फिल्म में स्टोरी अच्छा है, एक्टर्स अच्छा है, सॉन्ग्स आर गुड,
बट क्या है, फिल्म थोड़ा सा लूज हो जाता है. क्यों? बिकॉज कैसे लूज हो जाता है कि टाइमिंग्स जो है वो मिस कर जाता है. डायरेक्टर या प्रोड्यूसर टाइमिंग्स को मिस कर जाता है कि इसके बाद ये स्टोरी रखा जाएगा, इसके बाद ये सीन रखा जाएगा. वो जो सजाने का तरीका होता है वो बहुत सारे डायरेक्टर्स में या बहुत सारे प्रोड्यूसर्स में कमियां पाई जाती है. Am I clear? Next is verbal communications. Verbal communications means speak very clearly and correctly in a correct tone of with correct pronunciations. This is another important features of presentation skill. The next one is non-verbal communication. Your body language, your eye contact, your gestures, your postures. These all are another important features of presentation skill. Then visual aids. What are the visual aids? Means the slide, the chart, the diagram, the pie chart, the videos, the audios. These all are the important visual aids and another important part of presentation skill. And the next one is confidence and clarity. That is another important part. Anyone who is presenting any presentation, giving his presentations in front of anyone else, in front of seminars, in front of conferences and all, they need to keep 2 or 3 things important in their mind. One is communication, the another one is confidence, and the third one is clarity. These are the 3 important tool, or you can say the 3 important pillar of for presentation skill. The next one is audience engagement. ये सबसे important और सबसे टफ पार्ट है, ऑडियंस को एंगेज करना. ठीक है, क्योंकि इंटरैक्शंस एंड लिसनर्स दोनों रहेंगे, लेकिन आप डिस्कशंस कैसे करते हो, ऑडियंस को एंगेज कैसे करते हो, किस बेसिस पे आपको करना है, क्या टैक्टिक्स आप यूज कर रहे हो, ये आप ही पे निर्भर होता है. मैं अच्छा कम्युनिकेशंस करता हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ऑडियंस मेरी बात हमेशा सुनेंगे. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है. आप में वो कैरिस्मेटिक अट्रैक्शंस होना चाहिए, आप में वो कैरिस्मेटिक मतलब क्या मैग्नेटिक एटीट्यूड्स वाला पर्सनालिटी होना चाहिए, तब जाके आप पे ऑडियंस आपको अट्रैक्ट करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, ऑडियंस आपको सुनेंगे. Am I clear? So these are the very important key elements of presentation skill. Number 1 is content preparations. Number 2 is verbal communication. The third one is non-verbal communication. The fourth one is visual aid. The fifth one is confidence and clarity. And the last but not the least is audience engagement. Next slide. Importance of presentation skill. Definitely going to build the confidence level. Third one is career growth and leadership roles. Fourth one, communication more persuasive and impactful. And the last, essential for academic and professional success. Okay, that is why presentation skill is important. अब तक जो मैंने पढ़ाया है, कोई डाउट है इसमें? नो सर. ऐसा कोई पार्ट, ऐसा कोई चीज जो आपको समझ में नहीं आया है? नो सर. इजी है ये सब चीजें. नेक्स्ट, प्रेजेंटेशन स्किल और उनका टाइप्स. बेसिकली दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स बेस्ड ऑन पर्पस, बेस्ड ऑन स्टाइल एंड बेस्ड ऑन सिचुएशन. नंबर 1, इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन. इसका मतलब क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट वेरी क्लियरली एंड इन अ वेरी प्रोसेस्ड वे. जैसे इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आता है? क्लासरूम लेक्चर्स, कंपनी अपडेट्स और ट्रेनिंग सेशंस. की स्किल क्या है? इसमें स्किल क्या लगता है जो सबसे इंपॉर्टेंट? आपका क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड शेयरिंग फैक्ट्स एंड डाटा. दीज आर द इंपॉर्टेंट की स्किल्स फॉर इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस. तो इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशंस किसे कहते हैं? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और टू एक्सप्लेन अ कंसेप्ट, आइडियाज और process. Okay, this is called informative presentations. अगर examples लिया जाए तो classroom lectures, company updates और training sessions. This all comes under informative presentation. And what are the skills required for informative presentations? Number 1 is clarity, accuracy and
Number two is facts and data. These are the important key skills required for informative presentations. Next, persuasive presentations. What is persuasive presentations means? To influence the audience to accept an idea's opinion or proposal. Persuasive presentations का मतलब होता है मनवाना. आप कुछ भी ऑडियंस से मनवा सकते हो, बशर्ते ये है कि आप में वो काबिलियत है. कोई 1 रुपया का पेन, 1 रुपया का चॉकलेट्स अपना बातूनी से, अपना कम्युनिकेशन स्किल से 10 रुपया में बेच सकता है, और कोई 10 रुपया वाला चीज 1 रुपये में भी नहीं बेच सकता है. इसका एक एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं, आप कभी वेस्ट बंगाल लोकल ट्रेन में सफर कीजिएगा. शियालदा से लोकल ट्रेन आप अवेल कीजिएगा और कुछ 1-2 स्टेशन या 3-4 स्टेशन के लिए आप चलिएगा. कुछ हॉकर्स जो होते हैं वो आते हैं मलम बेचने के लिए. गौर से मेरा एग्जांपल सुनिएगा. कुछ मलम, जैसे जोड़ों का दर्द का मलम हुआ, कंधे का मोच, सर में दर्द, माइग्रेन, दांतों का दर्द, ये सब का मलम बेचता है. आप विश्वास कीजिए, ही इज नॉट सो मच क्वालिफाइड, बट ही इज सो ट्रेन्ड, ही इज सो गॉड गिफ्टेड क्लैरिटी ही हैज दैट he can sell a very simple, very simple things and make it priceless in front of the customers and sell it. एक 10 रुपया का दवाई का डब्बा, छोटा सा मलम, वो इतने सुंदर तरीके से, इतना सजाए, मतलब बढ़िया तरीके से सजा के वो अपना प्रेजेंटेशंस देते हैं that automatically the customers sitting inside the compartment of a train get attracted and they just listen his communication skill, the way he communicate, the way he delivers his skill, and मतलब क्या, हाथों हाथ वो बिक जाता है, हाथों हाथ. और सर एक बंदा आता है, वो नींबू के से रस निकालने का भी मशीन बेचता है, 10 रुपए उसका प्राइस होता है, 10 रुपए बस. बट रैंडमली लाइक इतने सारे कस्टमर को कन्विंस कर लेता है कि आपका मन भी ना हो तो ऑल्सो यू विल बाय इट. आई वांट टू सी. तो इस तरह का क्या क्या है, उनको सिखाया गया, कहीं ट्रेंड लिया गया है? बिल्कुल नहीं. वो एक्चुअली क्या, he can understand the nerves of the customers, कि मैं कौन से बात कहां किस वक्त करना है, राइट टाइम में कौन सा बात मुझे कितना देर तक बोलना है, वो उनके अंदर में ये कैपेबिलिटीज है. एंड फॉर दैट रीजन दिस टाइप ऑफ salesman, they can attract the customers at any point of time, whether that person is selling his items during the evening or in the afternoon or in the first morning train. Definitely he will going to sell each and every product within a fraction of a minute. Okay, he can sell. What is this charismatic things he has got? No. आप अगर उन शब्दों को सुनिएगा, आप अगर उन कम्युनिकेशन को सुनिएगा, तो देखिएगा कितने सुंदर तरीके से वो सजाया है. सबसे पहले वो ग्रीट करते हैं everyone sitting inside the compartment. He used to greet the customers, and after that he started to say something on the diseases that people now having. Toothache problem, headache problem, severe shoulder problem, this spinal problem, then this what you can say, toe problem, okay, knee joints problem, and what will be the consequences in coming days. He shows the path, he shows the scenario. आने वाले समय में क्या होने वाला है, ऐसा वो प्रेजेंटेशंस भयावह चित्र बना के आपके सामने रखेंगे that you will definitely feel at one point of time, शायद मेरे लिए ये प्रॉब्लम हो जाए, ये मेरे लिए दिक्कत हो जाएगा, हो सकता है ये सही बोल रहा है, और आपको कुछ प्रॉब्लम बीमारी है नहीं, वो ये भी जॉइंट उसके साथ अटैच करेगा,
कि आज जरूरत नहीं है लेकिन कल जरूरत हो सकता है। आपके घर में माता पिता बुजुर्ग है, उनको जरूरत हो सकता है, इसको रखिए। आप कट जाएगा, छील जाएगा, घुटनों में दर्द करेगा, माथा दर्द करेगा, माइग्रेन पेन, एक दवा। इस तरह से वो सबसे पहले ग्रीट करता है, उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट क्रिएट करता है, एक एब्स्ट्रैक्ट सिनॉप्सिस जिसे कहते हैं वो बताते हैं। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शंस देते हैं, मतलब एकदम रिसर्च पेपर की तरह मैंने उस चीज को देखा, पढ़ा, समझा। मैंने इस चीज को बहुत ऑब्जर्व किया कैसे वो सजा रहा है। हैपोजर्टली यहां वहां से लेके वो नहीं बोल रहा है, एकदम प्रोमिनेंट तरीके से। सबसे पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ग्रीटिंग्स, सेल्फ इंट्रोडक्शंस, एंड आफ्टर दैट अबाउट द डिजीजेस, मींस थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट, देन इंट्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन, एंड फाइनली मेथोडोलॉजी। रिसर्च पेपर में जो रिसर्च मेथोडोलॉजी हम लिखते हैं, मेथोडोलॉजी बताते हैं। किस मेथोडोलॉजी का मतलब क्या, इस दवाई में इसका जो कंटेंट्स है, क्या क्या कंटेंट्स इसमें मिला है। इसमें कपूर है, लौंग है, तेल है, उसको जला के फिर उसको बहुत देर तक उसके जला के उसका फिर कुछ पत्ते मिलाया जाता है, उसका फिर ये मेडिसिन बनाया जाता है। ये क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी वो बता दिया। अपना जो रिसर्च वो मेडिसिन में दिखा रहा है, उसका वो मेथड्स जो है वो बता दिया। और ये ओपन चैलेंज कर रहा है कि यू कैन मेड ऑफ योर सेल्फ, यू कैन मेक ऑफ योर सेल्फ। थोड़ा सा नीम पत्ता ले लीजिए, कुछ लौंग ले लीजिए, कुछ शीशम के पत्ते ले लीजिए, उसको बांट लीजिए, पीस लीजिए, उसमें 100 ग्राम सरसों तेल, उसको जला के 50 ग्राम या 20 ग्राम करके उसमें डाल दीजिए, उसके फिर कपूर डालिए उसमें, उसको फिर आप बना लीजिए। शायद ही कोई बनाएगा, वो इतना भी चैलेंज कर देता है। यू मेक योर प्रिपेयर योर सेल्फ एंड अप्लाई दिस thing on the area where you feel that where you feel the pain. You can apply this particular part and don't rub it continuously. Just one rub, it's okay, done. इस तरह से वो प्रेजेंटेशंस देते हैं। उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी कंप्लीट होने के बाद इसका क्या क्या कंसिक्वेंसेस है वो आपको बताएंगे। एंड फाइनली द रेफरेंसेस, हम लोग रिसर्च पेपर में रेफरेंसेस लिखते हैं। वो रेफरेंस क्या देते हैं, रेफरेंस में देते हैं कहां मिलेगा, कब मिलेगा, टेलीफोन नंबर्स क्या है, व्हाट्सएप नंबर क्या है। दीज ऑल आर द रेफरेंसेस दैट वी यूज्ड टू गिव। एवरी डे मेरे लिए संभव नहीं है ट्रेन में सफर करना, आज ये ट्रेन में है, कल दूसरा ट्रेन में है, तो कहां मिल सकता है, वो एड्रेस बता देते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर सिनॉप्सिस, ये पर्टिकुलर जर्नल की तरह वो बताते हैं, इसलिए कस्टमर्स बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। Am I clear? तो ये ऐसा है, जैसे अभी नीलांजन ने बताया, एक सिंपल 10 रुपया का नींबू का रस निकालने वाला वो पूरा बेच देता है। क्या है उसमें, कुछ नहीं है, प्लास्टिक का छोटा सा सामान है, लेकिन बोलने का तरीका इतना जबरदस्त है कि वो लगेगा कि 100 रुपया की चीज है। तो मैंने वही कहा, वो एक बंदा होता है जो 10 रुपया वाला चीज 100 रुपया में बेच देता है, और कोई एक जन 100 रुपया का चीज वो 1 रुपये में नहीं बेच पाता है। इट्स ऑल अबाउट योर प्रेजेंटेशन स्किल। Am I clear? This is called persuasive. Persuasive टेक्निक का मतलब होता है हाँ में हाँ मिला देना। आप इस तरह से बातों में उलझा के रखिए कस्टमर्स को कि आपके हाँ में वो हाँ मिलाएंगे, खराब होते हुए भी वो ना नहीं बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड परसुएसिव टेक्निक। ओके, एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स? दिस इज सेल्स पिच, बिजनेस प्रपोजल्स, मोटिवेशनल स्पीचेस, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स, इमोशनल अपील एंड कॉन्फिडेंट डिलीवरी। मैं अपना एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, ओके, तो मेरा कोई फ्रेंड था, उसका कोई एक दूर का मतलब कोई एक जान पहचान का है, वो कुछ इंश्योरेंस, LIC प्रीमियम इंश्योरेंस ये सब बेचने के लिए आया था। तो हमारे घर में भी आया है, उसके जान पहचान के थ्रू वो आया था। और सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ, चाय पानी हुआ, उसके बाद उसने अपना सेल्स पिच जो है हमारे सामने दिया। माय गॉड, मुझे लगा कि मेरा जीवन पूरा व्यर्थ हो गया। अगर मैंने अभी ये इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं लिया तो माय लाइफ इज हेल। मतलब इतना सटीक तरीके से वो कस्टमर्स को डील करते हैं, कस्टमर्स को समझाते हैं। एक वक्त के लिए आपको लगेगा कि मैंने दुनिया का सबसे बड़ा गलती कर दिया आज अगर मैंने ये इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं लिया तो। ठीक है, दिस इज कॉल्ड परसुएसिव टेक्निक। एम आई क्लियर? कोई दिक्कत है? No, sir. Anyone having No, sir. anyone having any doubt? Okay. Ma'am, go to the next slide.
Another one is motivational presentations. Motivational presentations तो आप तो जानते हो, बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स है जो encourage करते हैं ऑडियंस को, जो encourage करते हैं कस्टमर्स को to change the behavior or to take any actions on that. This is called motivational presentations, जैसे leadership talk, personal development seminars. Okay, this all motivational presentation. Then another presentation is decision making presentation, जैसे to present options and to help a group to make a choice. This is called decision making presentations. Okay, example management meetings or a project reviews reasons. This all comes under decision making presentation. इसका की स्किल्स क्या क्या है? एनालिसिस करने का तरीका आना चाहिए आपको, कंपैरिजंस करने का आपको एबिलिटीज होना चाहिए, एंड क्लियर कंक्लूजन्स में आना चाहिए. यू नीड टू कम टू द क्लियर कंक्लूजन्स. देन ओनली यू कैन आल्सो बिकम ए decision making presentations, and these all are required, comes under the managerials or management skill. Next, ma'am, next. Informative. Main goal क्या है? To share information. Example lecture. Persuasive, to convince audience. To convince audience, इसका examples है sales speech. Third है instructional, to teach or to show. इसका examples है workshop. Then comes motivational. The next one is motivational, to inspire. इसका example है leadership speech. Then next is decision making. इसका मेन गोल है टू इवेल्युएट ऑप्शंस. एग्जांपल्स है टीम मीटिंग्स. एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज बिजनेस. इसका एग्जांपल है टू प्रोमोट, एंड इसका एग्जांपल है प्रोडक्ट लॉन्च. ठीक है, दिस वन इज द समरी टेबल. अगर उतना याद नहीं रखे ना, तो ये जो जिस्ट यहां पर मैम ने दिया है बहुत सुंदर तरीके से, जहां पर इंफॉर्मेटिव किसे कहते हैं, उसका मेन गोल क्या है, उसका एग्जाम्पल्स क्या है, आप इतना भी पढ़ लीजिएगा तो इट्स ओके, इट कैन बी ओके. ओके, नेक्स्ट स्लाइड मैम. Oh God, group discussions. What is group discussions? Group discussion, you can say it is a well structured format of conversations, okay, among a groups. The group consisting of 8 to 10 members. Always remember one thing, group discussions का जो टीम बनता है वो हमेशा इवन नंबर पे बनता है. 8, 10, 12, 14, 16, 20. Maximum 20, not maximum 20. Maximum 8 to 10 groups में वो बनते हैं. Okay, 8 to 10 group of people. What is the purpose of group discussions? To enhance the communication, teamwork, and leadership qualities. To develop new idea and solutions through the group, and often used in job selections and academic assessment. Now I can say, now if I ask you why group discussion is important related to job field perspective point of view, can you answer me anyone? क्यों इसका जरूरत जॉब पर्सपेक्टिव में होता है? इसका जरूरत जॉब पर्सपेक्टिव में इसलिए होता है, फ्रॉम एट वन ग्लांस ओनली, थ्रू वन सिटिंग ओनली, इट इज वेरी मच इजियर फॉर HR or the management of any organization to judge a candidate whether the candidate is suitable to work in my company or not. Because during the group discussions, or your communication skill, your posture, your gesture, your articulations, your clarity, your gesticulation, these 6 important points come out. The 6 important points come out from yourself. So this is one of the most important area and very suitable for the HR to conduct an interview. जैसे ये कब होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स पोस्ट 2-3 पोस्ट है और जो कैंडिडेट्स है 30 कैंडिडेट है. अब कैसे करेंगे? एक GDs कंडक्ट करवा के,
वो कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ही जीडीस कंडक्ट करवाए, उसको इंडिविजुअली एचआर को सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, उसमें से फिर शॉर्टलिस्टेड हो जाता है कि किसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसका बॉडी लैंग्वेज अच्छा है, किसका आर्टिकुलेशन जेस्टिकुलेशन आर वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका वॉइस मॉड्यूलेशन अच्छा है, किसको नॉलेज है, सबसे पहले उनको रखो और बाकी जो है छांट। आप इंटरव्यू लेने में बहुत सुविधा हो गया है। Am I clear? Nowadays इंटरव्यूज कंडक्ट बहुत इजी हो गया है, क्योंकि बल्क में इंटरव्यू होता है, तो एचआर को बहुत टाइम लग जाता है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को छांटना, एनालाइज करना। तो ग्रुप डिस्कशन इज अ वेरी सिंपल एंड शॉर्ट structured format to judge a candidate whether he is suited for working in any organizations, mentioned organizations or not. Am I clear? This is called group discussions. Now, group discussions में बहुत सारा stages होता है, बहुत सारा stages of group discussions होता है। पहला स्टेज है आपका persuasive technique, दूसरा स्टेज है इंफॉर्मेशन टेक्निक, थर्ड स्टेज इज कम्युनिकेशन स्किल, फोर्थ स्टेज होता है आपका कंटेंट्स, फिफ्थ स्टेज होता है आपका कंट्रीब्यूशन एंड द सिक्स्थ स्टेज होता है आपका कंक्लूजन्स। जीडीएस में कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, जीडीएस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंक्लूजन। व्हाट इज कंक्लूजन्स? कंक्लूजन्स मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल, बिटकॉइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर नाउअडेज और नॉट। एक सपोज एक टॉपिक दिया गया है, फॉर और अगेंस्ट में बोलना है। अब जो फॉर में बोल रहा है, कोई जन जो होता है वो पॉइंट्स ओपन कर रहा है, तो नेक्स्ट का काम होता है उस पॉइंट को क्लोज करना है। अदरवाइज जो अगेंस्ट में रहेगा उसी पॉइंट को दोबारा पकड़ के उसमें से क्वेश्चन राइज करेगा। एम आई क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ ग्रुप डिस्कशन। इसमें इनिशिएटर, इसमें बहुत सारा पार्ट होता है। इनिशिएटर, डेटा गिवर, ट्रैफिक पुलिसमैन, ये सब नाम है। इनिशिएटर, कम्युनिकेटर्स, इंफॉर्मेशन शेयर, डेटा शेयर्स, ट्रैफिक पुलिसमैन, पिगी राइडर्स, these all are some relevant names of group discussions। ये जितने भी नाम मैंने आपको बताए, ये सारा कुछ जो होता है ग्रुप डिस्कशंस जो पैनल बैठते हैं उसका डिफरेंट डिफरेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनिशिएटर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएटर? इनिशिएटर का काम क्या होता है या कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है? टू इंट्रोड्यूस योर टीम। What is the main work of the coordinator? To introduce your team and open the discussion. उसके बाद होता है इनिशिएटर हो गया, सॉरी कोऑर्डिनेटर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन शेयर करना, पॉइंट शेयर करना। दिस इज अनदर नेम। द थर्ड वन इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं भूल जा रहा हूं उसको, उसका भी एक नाम है। जो क्या करते हैं, जो पॉइंट्स कोई बता रहा है उस पॉइंट को एक्सप्लेन करना। देन द नेक्स्ट वन इज कंक्लूजन्स। उनका काम है whatever the points has been opened and discussed in the open forum, it need to be closed, it need to be come to the conclusions, otherwise group discussions will goes on continue। okay, अब ग्रुप डिस्कशंस में दो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझना पड़ेगा, इथोस, पैथोस, लोगोस। These are the four important structure of group discussion. Ethos, what is the meaning of ethos? Ethos means who invent the points, who start to give you relevant examples. That is called ethos. And what is pathos? Pathos means who are little bit emotional. To control the emotions, the pathos team required. हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, ग्रुप डिस्कशन कभी कभी फ्लो में बहुत सारा कुछ बोल देते हैं, समझना पड़ेगा वो इमोशनल में बह जा रहा है, तो पैथोस का काम होता है उस इमोशंस को कंट्रोल करना। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोगोस? लोगोस मींस लॉजिकली उस पॉइंट को कंक्लूड करना, लॉजिक देके उस पॉइंट को बंद करना। इथोस, पैथोस, लोगोस, दीज आर द थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। What is the work of पिगी राइडर? पिगी राइडर किसे कहते हैं? पिगी राइडर एक इनिशिएटर को कहते हैं। उसका काम क्या होता है? आपसे कुछ पॉइंट्स चुरा लिया, उनसे कुछ पॉइंट्स चुरा लिया
और दोनों को एक साथ करके बोल दिया, उसका कोई अपना नहीं है। These are called the piggy riders. पॉइंट्स चुरा के बोलना, उनको पिगी राइडर्स कहा जाता है। ग्रुप डिस्कशंस में पॉइंट्स कैसे डिवाइड होता है? ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट्स 4 स्टेजेस में डिवाइड होता है। पहला है एग्जाम्पलरी 4 पॉइंट्स, दूसरा है अकम्प्लिश्ड 3 पॉइंट्स, तीसरा है लर्नर्स 2 पॉइंट्स एंड नंबर 1 इज बिगिनर्स। एग्जाम्पलरी किसे कहते हैं? एग्जाम्पलरी उस कैंडिडेट को कहते हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, उस कैंडिडेट को 4 नंबर दिया जाता है जिसका पॉइंट्स जबरदस्त है, जिसका डेडिकेशन, वे ऑफ प्रेजेंटेशन जबरदस्त है, उसको 4 नंबर दिया जाता है, जिसे हम एग्जाम्पलरी कहते हैं। द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एग्जाम्पलरी हो गया। अकम्प्लिश्ड, द नेक्स्ट वन इज अकम्प्लिश्ड, जिसको 3 नंबर मिलते हैं। इनका भी प्रेजेंटेशन जबरदस्त है, लेकिन ये कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, इसलिए 1 नंबर काट जाता है, और इस तरह का कैंडिडेट को अकम्प्लिश्ड रैंक में रैंकिंग किया जाता है। द थर्ड वन इज ऑफ ग्रुप डिस्कशन इज द अकम्प्लिश्ड हो गया लर्नर। लर्नर का मतलब क्या होता है? लर्नर का मतलब होता है कि कुछ पॉइंट्स वो बोल रहा है, कभी कभी बोल रहा है, मैक्सिमम चुप रह रहा है, उसको 2 नंबर दिया जाता है। और बिगिनर का मतलब होता है हमेशा कुछ नहीं बोल रहा है, he is sitting very idle, keeping calm and quiet, nothing he interfere in the group discussions, उनको 1 नंबर मिलता है। इस तरह से ग्रुप डिस्कशन में पॉइंट्स डिवाइड किया जाता है। Am I clear? Is it clear? सर मुझे 3 टाइप्स आपने बताया, इथोस, स्ट्रैटोस एंड तीसरा वाला मैं भूल गया सर। सो लोगो मैंने स्टेटस बोला ना, इथोस, पैथोस, लोगोस, मैंने 3 बताया। पैथोस, PATHOS, पैथोस, ethos, pathos and logos. These are the 3 important stages of group discussions. What are the stages? मतलब क्या? For example, why this mentioned here the stages? Okay, the candidate need to be judged on based on these 3 important points. Ethos means how much with clarity, with confidence, and with points, relevant points you are coming up in front of the audiences. That is called ethos. Pathos means some few students are there who emotionally go on speaking on any topic without any comma, without any full stop. They are called the pathos. And logos means those candidates who are logically keeping their point of view in front of the audiences. So these 3 parameters, based on these 3 parameters, the judge give their best marks. और मार्क्स डिवाइड कैसे होता है? एग्जाम्पलरी 4 नंबर, उसके बाद इंफॉर्मेटिव 3 नंबर, बिगिनर्स 2 नंबर, लर्नर 1 नंबर। 4, 3, 2, 1। सबसे जो आउटस्टैंडिंग पॉइंट्स बोलता है उसको 4 नंबर मिलता है। एग्जाम्पलरी जो होता है उसको 3 नंबर मिलता है। मतलब क्या? एग्जाम्पलरी का मतलब पॉइंट्स बोला है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में वो अपना सही ट्रैक से थोड़ा सा डाइवर्ट हो जा रहा है, इसलिए उसका 1 नंबर कट जाता है, उनको 3 नंबर मिलता है। इस 3 नंबर को एग्जाम्पलरी कहा जाता है। थर्ड वन इज द बिगिनर। बिगिनर का मतलब स्टार्टिंग तो अच्छा किया लेकिन कंक्लूजन नहीं कर पा रहा है, क्लोज नहीं कर पा रहा है। ग्रुप डिस्कशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉइंट्स को क्लोज करना। और लास्ट है बिगिनर, लर्नर। लर्नर का कुछ पॉइंट से 1 नंबर मिलता है, क्यों 0 तो नहीं बैठा सकता, 1 नंबर बैठाता है। उसका काम क्या होता है? बिगिनर किसे कहते हैं? जो बिल्कुल कोई अपना कंट्रीब्यूशन देता ही नहीं है, चुपचाप बैठा है, विदाउट ए पिन ड्रॉप साइलेंट, विदाउट मेकिंग एनी डिस्टर्बेंस, ही सिट काम एंड क्वाइट। सो उसको बिगिनर कहा जाता है, उनको 1 नंबर दिया जाता है। Am I clear? यस सर। चलिए मैम नेक्स्ट स्लाइड। सब तो बता दिया शायद, मुझे नहीं लगता और कुछ है। डेफिनेशन मीटिंग, ओके।
ये क्या है? ग्रुप डिस्कशंस, मीटिंग्स एंड इंटरव्यू। मीटिंग्स क्या किसे कहते हैं? इट्स अ फॉर्मल और यू कैन से इट्स अ इनफॉर्मल गैदरिंग्स of two or more than people to discuss and decide on issues, plans, tasks within an organization. Before I go into the points, once more I asked to Tanmay, अब तक जो मैंने समझाया on group discussion, ये लिखा नहीं था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप लोगों को बता दिया। ये समझ में आ गया? Is it clear to हाँ you? सर, हाँ हाँ, डाउट ये सब नहीं है, ये यस सब नहीं है, लेकिन मैंने नॉलेज वीडियो की फिर बेसिस मैं में, देखूंगा इसके बाद रिकॉर्डिंग के पे मतलब मेरा तो वीडियोस नहीं है यार, मेरा तो ऑडियो है सिर्फ। अच्छा सुन लेना, नहीं सुन नहीं सर लेना। जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है मैम फिर ये करती है ना तो हाँ हाँ सुनता हूँ मैं फिर उसके बाद Very good. अगर नहीं समझ में आता तभी मैं ये करूंगा। हाँ, ये जितना भी मैंने अभी ग्रुप डिस्कशंस के बारे में बताया था, ये सब सारा कुछ जो है एक्स्ट्रा मैंने आप लोगों को बताया, ये फिलहाल सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस बताया गया, थोड़ा सा डीप इन डेप्थ एनालिसिस करके मैंने बताया। ग्रुप डिस्कशंस में एक और चीज है, ट्रैफिक पुलिसमैन। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट किरदार ऑफ ग्रुप डिस्कशंस। ये सारा जितना भी नाम मैंने बताया ना, इनिशिएटर, कोऑर्डिनेटर, इंफॉर्मेशंस गिविंग, traffic policeman, piggy riders, these all are the different names of in a group discussions. ये बहुत बड़ा नेम होता है। ऑब्जर्वर, एसेसर, जो पॉइंट्स देते हैं उन्हें एसेसर कहा जाता है। जो पॉइंट्स देते हैं ग्रुप डिस्कशंस को, जो पॉइंट्स देते हैं दे आर नोन एज एसेसर्स, एसेसर कहा जाता है उनको। ठीक है, नॉलेज बेस के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, और इस तरह से ये लोग पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, एक बार सुन लेना बढ़िया से, मैम जब रिकॉर्डिंग भेजेगी, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप डेफिनेटली हमसे पूछिए, मैं दोबारा आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, तो इन मीटिंग्स का तो डेफिनेशन आपको पता है, वेरी सिंपल। क्या है इसका पर्पस? क्या है इसका पर्पस? है टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स, to make decisions and solve problems, and to assign tasks and monitor progress. These are the purpose of meetings. Next slide मैम। टाइप्स ऑफ मीटिंग, पहला है फॉर्मल मीटिंग्स, दूसरा है इनफॉर्मल मीटिंग। फॉर्मल मीटिंग जैसे स्टाफ मीटिंग हुआ, बोर्ड मीटिंग हुआ, कॉन्फ्रेंस मीटिंग हुआ, कमेटी मीटिंग्स हुआ, दिस ऑल आर फॉर्मल मीटिंग्स। इनफॉर्मल मीटिंग्स का मतलब होता है अपने दोस्त को साथ गपशप करना, घर के अंदर में कुछ पर्सनल फंक्शंस है, कुछ उस मीटिंग्स करना, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल मीटिंग। एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग, यू हैव यू एवर लिसन द नेम ब्रेनस्टॉर्मिंग? व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? डिफरेंट आइडियाज, रेलिवेंट और डिफरेंट नॉन-स्टॉप आइडियाज दैट कम्स टू योर माइंड, दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये एक अनदर कॉग्निटिव स्किल है इंसान के अंदर, ब्रेनस्टॉर्मिंग। कभी अगर मौका मिले तो मैं पढ़ाऊंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक अलग चैप्टर है, अलग चैप्टर है। प्रोफेशनल स्किल में ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत बड़ा योगदान है। मैनेजमेंट में ब्रेनस्टॉर्मिंग का बहुत पर्टिकुलर एक स्थान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट में कोई एक ही पॉइंट्स पे या कोई एक ही बिंदु पर स्टिक नहीं हो सकता। आज ये पॉइंट्स इंप्लीमेंट करना है, कल और पॉइंट को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो मैनेजमेंट को चाहिए ऐसा कोई कैंडिडेट जिसका परसेप्शंस, जिसका आइडियाज कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअस। दिस प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ आइडियाज इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। जैसे मैंने कहा कि ये रास्ता इधर से जा सकता है, मैंने एक रास्ता आपको बताया, कदम आने का रास्ता। आप बिष्टुपुर से आ सकते हो, आप आदितपुर से आ सकते हो, आप गमरिया से आ सकते हो, गोलमुड़ी से आ सकते हो। अगर मैं आपसे कहा विच वन इज द शॉर्टेस्ट रूट कमिंग फ्रॉम गमरिया, देन मेनी आइडियाज आर देयर। आप वो मेरिन ड्राइव होके आ सकते हो। आप मेरिन ड्राइव होते हुए एक और गली है, उस गली में अंदर डाउन, वहां से आप तुरंत ये मरीन ये सुधीर मोहंती जो स्टेडियम है वहां उठ जाओगे। ठीक है, ये जो कंटिन्यूएशन फ्लो ऑफ आइडियाज दैट कम्स टू माय माइंड, दैट आई एम शेयरिंग विथ यू,
This continuations of ideas is called brainstorming. ये आया है brainstorming, इसलिए मैंने आपको बता दिया. ठीक है, नॉन स्टॉप आइडियाज. व्हाट आर द स्किल रिक्वायर्ड? हमारे महेंद्र सिंह धोनी जो इंडियन कैप्टन थे, he have a very good this cognitive skill, that is brainstorming skill. He love to do the experiments. He doesn't stick to one particular basic things. उनका फील्ड सेटिंग्स जो है वो एक ही रूल्स या एक ही पैटर्न से वो करते नहीं थे. वो कभी कभी ऑफ द फील्ड जाके ग्राउंड के बाहर रूल्स ब्रेक करके कुछ ऐसे सिम्टम्स को डेवलप करते थे और वो सडनली वो क्या होता था, वो इंप्लीमेंट हो जाता था. वो कैलकुलेटिव रिस्क लेने में बहुत ज्यादा माहिर थे महेंद्र सिंह धोनी. दैट इज व्हाई ही इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट इंडियन कैप्टन or one of the most renowned captain in the world. Why? Because he has the capacity, he has the cognitive skills of brainstorming. He can take sudden decisions very quickly, very promptly with 100% accuracy. He can take the decisions. Think of 2007 World Cup, or you can think of any other cup captained by Mahendra Singh Dhoni. Look at his mind mapping. Look at his way of calculative risk. You will find, once you can find it out, you can figure it out that what type of skill this person is having. That is why we were among the best captain. He is one of them. Okay. Now, what are the skill required? What are the key skill required? Preparations for agendas and meeting, time management, participations and clarity in communications, note taking and follow-up actions. These are the skill required for formal and informal meetings. Next, ma'am. Interviews. Okay, the interview, it is a formal conversations between two or more, between interviewer or between interviewee. The person who is taking the interview is called interviewer, and the person who is giving the interview is called interviewee. So why interview is important? It's a formal conversations among the candidate, in between the candidate and between the HR. Because so that the HR can identify the strength and weaknesses, the perceptions of a candidate's mind that he is having. Okay? And whether the candidate is suitable for the organizations to work or not. This is the definition of an interview. What is the purpose of an interview? To select the right candidate, to select the right employer, okay, to collect the information and research, to evaluate the knowledge and attitudes. These are the main purpose of interview. What are the types of interview? Job interview, academic interview, panel interview, telephonic interviews, video conference interview, offline interviews, online interviews. Many interviews are there. Different type of interviews are there. Behavioral interview, शायद इसमें नहीं दिया है, लेकिन एक और इंटरव्यू होता है बिहेवियरल इंटरव्यू. नाउ व्हाट इज साइकोलॉजिकल इंटरव्यूज? बिहेवियरल इंटरव्यूज, ये जब असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में एक जॉब होता है, गुड्स गार्ड, असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, इस तरह का, या फिर एक और होता है आपका ड्राइवर का. तो ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, बिहेवियरल टेस्ट उनको अलग से रिटन फॉर्म में देना पड़ता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट? सम सिचुएशंस आर देयर, based on the situations you need to answer the questions. The questions are in tricky form. You need lot of concentrations, you need lot of practices to answer those questions. So getting job in RRB, that too in railway driver, is not an easy task. It's a very, very tough job, and you need to keep your mind very clear. Mentally आपको stress free होना पड़ेगा. क्यों? 12 14 आवर्स आपको ट्रेन में सफर करना है, ट्रेन चलाना है. तो आपका माइंड कैसा होना चाहिए, माइंड का सेटअप कैसा होना चाहिए, ये जानने के लिए ये साइकोलॉजिकल टेस्ट, बिहेवियरल टेस्ट, ये भी एक तरह का इंटरव्यू है, लिया जाता है. क्लियर है?
Is it clear to you? यस सर. सर ये साइकोलॉजिकल टेस्ट भी क्या रिटर्न में ही होता है? हाँ, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी रिटर्न में ही होता है. कैसे होता है मैं आपको बता देता हूं. आपने नॉन वर्बल रीजनिंग्स, आप आरआरबी की कुछ किताबें देखिएगा या फिर गूगल कीजिएगा नॉन वर्बल रीजनिंग्स. कुछ ऐसे रीजनिंग्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ वो टेस्ट, वो ड्राइवर ही उसको कर सकता है. आपको कुछ ऐसा डायग्राम्स दे दिया जाएगा, ऐसा कुछ शेप्स एंड साइज आपको दे दिया जाएगा और कुछ ऑप्शंस आपको दे दिया जाएगा कि इसके बाद कौन सा ऑप्शंस आने वाला है. वेरी कैलकुलेटिव आपको वे में करना पड़ेगा, वेरी कैलकुलेटिव वे. ओके, वो वर्बल या नॉन वर्बल रीजनिंग में आता है. और वो जो मेन है वो एक्चुअली आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट या आपका बिहेवियरल टेस्ट किया जाता है. आप ना, मैं आपको बता रहा हूं तन्मय, आप जब उस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिएगा ना, आप गुस्सा आ जाएगा आपको. आप मिनिमम 5 से ज्यादा सवाल आप कर ही नहीं पाओगे. आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, आप इंपेशेंस हो जाओगे. वक्त ऐसा आएगा कि आपको लगेगा मैं कॉफी फेंक के क्यों जानते हो, वो लगातार उसके रिलेटेड सवाल आ रहा है. कैसे? सबसे पहले एक सवाल दिया, आपने किसी तरह से हल किया, अब दूसरा सवाल भी उसी रिलेटेड है, ऑप्शंस अलग है. कैसे कीजिएगा? चलिए, माथा पेची करके आपने उसका आंसर दे दिया. तीसरा भी वही इस तरह का सवाल है, ऑप्शंस अलग है. तो अब 3 से 4 सवाल करने के बाद आपका स्ट्रेस लेवल जबरदस्त बढ़ जाता है. बना ही ऐसे तरीके से बनाया गया है कि आपका स्ट्रेस लेवल चेक किया जाएगा. क्यों? इनको साइकोमेट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं ना. हाँ, जो मैंने HSBC में दिया था, रिमेम्बर दिस. आप जैसे बोल रहे हो वैसा रहता है. 100 क्वेश्चन था सेम टाइप का, लाइक एक ही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहा है बट ऑप्शंस आर डिफरेंट एंड यू हैव टू आंसर सिमिलर. तो आपका स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि आप फाइनली छोड़ दो बनाना इस चीज को, प्रैक्टिस करना. तो क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको वो ट्रेन चलाना पड़ता है, इतने सारे पैसेंजर्स की जिम्मेदार आपके कंधों पे है. आप पूरा एक लाइफलाइन लेके चल रहे हो. समझ गए हो कि आपसे कुछ अगर मिस्टेक्स हो गया, मतलब ये जो 1000 डिब्बे में बैठे हुए हैं, 500 से ज्यादा पैसेंजर्स है, वो तो खत्म. आपका एक गलती डिसीजन वो खत्म, पूरा इतना सारा जान चला जाएगा. जिसकी वजह से इतना सारा टफ पार्ट से उनको गुजरना पड़ता है. हालांकि एग्जामिनेशंस जो है वेरी इजी है, लेकिन ये जो साइकोमेट्रिक वाला जो बिहेवियरल या साइकोलॉजिकल टेस्ट है वो थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आप स्ट्रेस ज्यादा ले ही नहीं पाओगे. आप 5 सवाल करने के बाद आपको थक जाओगे, आपका माइंड जवाब दे देगा, यार भाग, छोड़ दो, फोन नहीं करेगा, दूसरा कुछ जॉब खोज लेता हूं. दिस टाइप ऑफ सिम्टम्स विल गोइंग टू अराइज if you try to solve this type of problems. Am I clear? Clear है? हाँ सर. हाँ, चलिए नेक्स्ट स्लाइड क्या है देखते हैं. यस सर. अरे स्लाइड ही खत्म हो गया और कुछ है ही नहीं. तो here we come to the end of this group discussions and interviews.